Hello friends, today we can start some lessons from history. So we already completed 2 lessons in English, so we are moving to history now. So in uh, in this year we are going to learn about Indian subcontinent and history. Let us discuss what is meant by Indian subcontinent first. Here is a map for you. You can see India's 3 sides are covered with water or ocean. In the west, Bay of Bengal, in the east, Bay of Bengal, in the west, Arabian Sea, and in the south, Indian Ocean. So if a place or if an area, 3 sides are covered with water, it is called a subcontinent. 3 sides are covered with water, therefore it is called a subcontinent. If an area is completely covered with water, it is, we can say, continent or an island. Continent or island. Both these things are we are considering according to the width or the size of the area, size of the land. लैंड के साइज के अनुसार वो द्वीप और आइलैंड और कॉन्टिनेंट, ये दोनों कैटेगरी डिवाइड करेगा. और यहाँ पे हमारा देश इंडिया की तीनों साइड में ओशन है, therefore it is called a subcontinent. So today in the first topic, there is a topic is given there, geographical conditions and history. What is the relation between geographical conditions and history? In the 5th standard we saw at some length that there is a close relationship between man and his environment. Last year हमने learn किया है man and environment both are interrelated. We saw how the changes in the lifestyle of the early man and his technology were related to the changes in his surroundings. हमने देखा है बहुत ज़्यादा changes, lifestyles और technologies, all these things are related to the changes in the surroundings. Surroundings में बहुत ज़्यादा changes बनाते हैं. और we also reviewed the history of human civilization from the Stone Age and agricultural civilization that flourished on the banks of the rivers. और हमने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन सिविलाइजेशंस फ्रॉम स्टोन एज से लेके हर एक सिविलाइजेशन एक नदी का किनारे में, बैंक्स ऑफ द रिवर मीन्स नदी के किनारे में. अब देखो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो और नाइल सिविलाइजेशंस, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस, ये सब सिविलाइजेशंस और सब ह्यूमन सेटलमेंट्स जो स्टोन एज से लेके सभी सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स सब नदी के किनारे में, सब एक नदी का किनारे में. सो व्हाई इट इज़? बिकॉज इट्स हेल्प्स टू ट्रैवल और एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़. खेत बनाने के लिए पानी बहुत ज़रूरत है, तो खेत बनाने के लिए और उसके साथ ट्रैवलिंग करने के लिए भी पहले हम नदी को डिपेंड करते थे, रिवर्स को डिपेंड करते थे. हिस्ट्री इज़ ए कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स. सो व्हाट इज़ हिस्ट्री? इट इज़ ए कोहेरेंट मीन्स रिलेटेड अकाउंट ऑफ द पास्ट इवेंट्स. एक इवेंट दूसरे इवेंट के साथ में है. देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन एवरी इंसिडेंट्स इन द हिस्ट्री. ऐसा है. In the progress of human culture, time, place, society and individuals are the 4 major pillars of the history. So what are the 4 major pillars of the history? Time, then place, कौन सा साल है, that is here time means which year. Then place, कौन सा जगह पे, भारत में क्या, नहीं इजिप्ट में क्या, रशिया में, चाइना में, कौन सा जगह पे, वही. Then society, which society was flourished there, which type of society was there, English society है क्या, African society है, ऐसे एक एक society. Then individuals, we are also learning about many kings and scholars. बहुत ज़्यादा राजा के नाम हमने देखा है हिस्ट्री में, और स्कॉलर्स का नाम भी देखा है, लाइक ग्रेट साइंटिस्ट, न्यू इन्वेंटर्स और सबका. वी कैनॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम. ये इसके अलावा टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स के अलावा हमको हिस्ट्री लिख ही नहीं सकता है. ऑफ दिस 4 कंपोनेंट्स, प्लेस इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी. और उसमें प्लेस एक जगह
that is related to geography or geographical condition. In this sense, history and geography are inseparable. इसलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हम सेपरेट कर नहीं सकता है, बोथ आर अ पार्ट ऑफ ए पिलर, एक सिर्फ एक पिलर का टू पार्ट है. हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल कंडीशन इन मेनी वेज. और हिस्ट्री इसके साथ जियोग्राफिकल कंडीशन के साथ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है. और डाइट्स मीन्स डे टू डे लाइफ, खाना, सिंपली हमको खाना बोल सकता है, खाना और डेली रूटीन. देन हमारा क्लॉथिंग, कपड़ा कैसे बनाता है, हाउसिंग, घर कैसे बनाता है, और ऑक्यूपेशन, कौन सा काम करते थे. इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड्स ऑन ए लार्ज एक्सटेंट ऑफ जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसलिए एक जगह की ह्यूमन लाइफ वो जगह की बहुत बड़ा जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स के अनुसार है. देखो फॉर एग्जांपल हमारा खाना, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आवर फूड, डाइट, वो कैसे, इफ़ वी आर लिविंग इन ए हॉट रीजन, अगर हम बहुत गर्मी वाले एक जगह पे रहता है, फॉर एग्जांपल राजस्थान में रहता है, बहुत गर्मी है वहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा फ्रूट्स खाना पड़ता है. और हमारा कपड़ा कैसे रहेगा, कॉटन के कपड़े एकदम सॉफ्ट क्लॉथ्स हमको पहनना पड़ता है. लेकिन इसका ऑपोजिट हिमालयन रीजन में गया तो कैसे है, वहाँ पे उस लोग खाना कैसे खाता है, एकदम गर्म, और मीट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मीट खाता है. और कपड़ा कैसे रहेगा, हाँ ये शेपर्ड का जैसा, शेपर्ड की वो जो क्लॉथिंग्स, एकदम हार्ड क्लॉथ्स हमको बनाना, स्वेटर के जैसा हार्ड क्लॉथ्स हमको पहनना पड़ता है. और हाउस भी वैसे रहता है, वो एग्जैक्ट जोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार है. और ऑक्यूपेशन, काम भी वैसे रहता है. These are the examples for the life of the people in a hilly region more strenuous than the people of the plain. और एक ऊपर माउंटेन रीजन में जो लोग रहता है वैसे नहीं है. strenuous means big difference between on the plains. Not much fertile land is available in the hilly regions. उतना अच्छा ज़मीन हमको हिली रीजन में नहीं मिलेगा, लेकिन प्लेन में हाँ ये जो एग्रीकल्चर बनाने के लिए बहुत सूटेबल एरिया है. In hilly region, while the plains is available at large scale, that is why grains and vegetables are scarce in hilly areas. इसलिए जो hilly region में grains और vegetables बहुत कम मिलता है. People on the plains get them in a sufficient measure. लेकिन वो plain area में जो लोग रहता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा sufficient vegetables और ये जो grains वगैरह मिलेगा. Naturally, this has an impact of their diet of the people. ये भी वो जो जगह की डाइट, खाना में बहुत important part है. In hilly regions, people depend more on hunting and gathering. और hilly region में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करता है, hunting, हाँ hunting करता है. और we also find other such differences. Hunting and gathering means honey वगैरह और बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें से जंगल में जाके कलेक्ट करके लेके आएगा. एंड वी फाउंड सम अदर डिफरेंसेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इन हिली रीजन्स एंड दोस प्लेन. और हिली रीजन में भी और प्लेन रीजन में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी, अलग अलग डिफरेंस हमको दिखेगा.